دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین کرام، ملک کی صورتحال انتہائی خطرناک صورتحال سے دو چار ہے جو ملک کو آگ میں دھکیل سکتی ہے، کیونکہ سب مل کر یہ زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دیا جائے، اس کو اسمبلیاں تحلیل کرنے سے روکا جائے، لیکن تنہا کپتان ان کے سامنے ایک بہت بڑی ریزسٹنس بن کر سامنے آ چکا ہے، جو کہ نہ اگلا جا رہا ہے اور نہ نگلا جا رہا ہے۔ تو آج خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں اور حالات بھی اچھے نہیں نظر آ رہے، تو کچھ ایسی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس نے اس وقت تہلکہ مچا کے رکھ دیا ہے۔ آج کی سب سے پہلی سٹوری یہ ہوگی کہ ہر طرف فوج ہی فوج آ چکی ہے، اچانک ملک میں مارشل لا کے الارم بج چکے ہیں، اور وہی حالات جو آپ نے 9 اپریل کو دیکھے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر ناظرین کرام دسمبر جو ہے وہ ستمگر ثابت ہو چکا ہے۔ اب جناب گیم سیاستدانوں کے ہاتھ سے باہر نکل رہی ہے اور پنجاب کا سیاسی دنگل خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ مارشل لا کے دعوے کہاں سے سامنے آ رہے ہیں، اس وقت جی ایچ کیو میں کیا چل رہا ہے، اور آئندہ چند گھنٹوں میں پاکستان کی سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے، یہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ رات گئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ریڈ لائن کھینچ ڈالی ہے، اور یہ خبر بہت اہم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو سخت ترین ہدایات جاری کر دی ہیں، اور اس سب کے بعد جناب اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو ہدایات جاری ہوئی ہیں کہ جہاں پر ایک جانب تو عمران خان کو رگڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سر کچلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہیں پر ایک ایسا بیان دے ڈالا جس نے اس وقت طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور تیسری خبر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آخر کار چودھری جو ہے انہوں نے عمران خان کی پیٹھ پر چھرا کھونپ دیا ہے۔ این موقع کے اوپر کل جو کہہ رہے تھے رات تک کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، دل و جان سے کھڑے ہیں، تو جناب آج وہ مکر گئے ہیں۔ آج انہوں نے عمران خان سے جدائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی اہم ترین تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین کرام، 9 اپریل کی رات کو جب عمران خان کو نکالا گیا تھا، میں اس وقت اسلام آباد میں موجود تھا، اور 1 اپریل سے 9 اپریل تک میں نے گراؤنڈز کے اوپر رپورٹنگز کی اور میں نے لوگوں کو روتے دیکھا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب عمران خان کال دے رہا تھا، کروڑوں پاکستانی سڑکوں کے اوپر تھے۔ آپ یہ سمجھیں کہ کسی کی ٹانگ نہیں تھی، کسی کا بازو نہیں تھا، کوئی ریڈی چلانے والا تھا، سب نے اپنا اپنا کام چھوڑ دیا تھا، سارے عمران خان کے لیے باہر نکلے تھے۔ وہ رات پاکستان پر بہت بھاری گزری تھی۔ وہ ایک مس ایڈونچر تھا کہ جب جنرل بادشاہ کو ایجنسیز کی رپورٹ دی گئی تھی کہ عمران خان صاحب کو جب آپ نکالیں گے تو آپ ان کو انڈے لوگ ماریں گے، اس کو ٹماٹر ماریں گے، وہ عوام نے جانے کے قابل نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی۔ آج وہ جنرل بادشاہ جو ہے وہ گمنامی کی زندگی میں چلا گیا ہے۔ آج لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، سریعام گالیاں دیتے ہیں، میں بھی اس کو سریعام گالیاں دیتا ہوں۔ اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو اس کے تانے بانے حسین حقانی کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو جناب من، وہ عمران خان جس کو انڈے اور ٹماٹر مارنے کی باتیں ہو رہی تھیں، آج وہ اپنی مقبولیت کے معراج پر پہنچ چکا ہے۔ ڈائری اٹھا کر جانے والا آج عوام کے کندھوں پر آ چکا ہے، اور عوام نے اس کو اپنی ضد بنا لیا ہے۔ تو وہی صورتحال جناب آج آپ پنجاب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو کھڈے لین لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کی آڈیوز ویڈیوز کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی کردار کشی اور اس کا کریکٹر اچھالنے کی جناب یہ ساری سازش تو ہو رہی ہے، تو کیا اس پر عوام خاموش رہے گی؟ تو آج گورنر ہاؤس کے باہر پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان جو ہے وہ رات 12 بجے کسی بھی وقت وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر کے پنجاب میں گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ معاملہ نہیں ہوا۔ اور آج کی جو 22 دسمبر آ چکے ہیں، اور یہ دن بہت اہم ہے، اور 23 دسمبر یعنی کہ جمعے کو تحریک عدم اعتماد کی کارروائی شروع ہو جائے گی پنجاب اسمبلی میں۔ تو جناب من، اب 23
23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक। 1 जनवरी को अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो पंजाब और केपीके की असेंबलियां तहलील हो जाएंगी। तो आज का दिन रह चुका है नून लीग के पास और तमाम दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील कर दी तो पूरा मुल्क जो है वो इलेक्शन के अंदर चला जाएगा। 70% के ऊपर इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो बिलावल भुट्टो वजीर खारजा है मुल्क के, वो कहते हैं कि दारों में कुछ लोग अभी भी ऐसे बैठे हैं, अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो गए तो धांधली से वो इमरान खान को जितवा देंगे। अब आप इमरान खान की मकबूलियत का खौफ देख सकते हैं कि वही बातें कि अब इमरान खान के पीछे एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई है और इमरान खान को वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग जितवा देंगे। ये इस तरह की साजिशें जो है वो हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, आखिरकार एक जो एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा मोहरा है परवेज राही साहब, उन्होंने क्या इमरान खान की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। इस वक्त ये खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो चुकी हैं। आज 22 दिसंबर की खबर है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम तो न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर वो कौन है जो जनूबी पंजाब की खवातीन एमपीएस को ये धमकियां दे रहा है और ऑफर्स कर रहा है पैसों की कि आप वोट कास्ट ना करें और आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं। तो रात 12 बजे चूंकि चौधरी परवेज राही साहब को डीनोटिफाई नहीं किया गया और एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इमरान खान साहब किसी सूरत भी असेंबलियां तहलील करें, तो जनाब अब बंद कमरों में भी फैसले हो चुके हैं कि पीडीएम की सपोर्ट जारी रहेगी और इस सिस्टम को आखिरी बॉल तक खींचा जाएगा। तो खबर मैं आपके सामने रख देता हूं कि नून लीग ने यह बहुत बड़ा दावा कर दिया है। आपने सुना है कि रात 12 बजे डी नोटिफाई परवेज राही को करने क्यों नहीं किया गया, क्योंकि समरी पर दस्तखत हो गए थे और यह फैसला हो चुका था। लेकिन ऐन मौके के ऊपर वो फैसला क्यों रोका गया। नून लीग ये दावा करती है कि हमने रात को परवेज राही साहब ने चंद शख्सियात को ये यकीन दहानी करवाई। अब वो कौन था जो नून लीग को ये यकीन दहानियां करवा रहा था, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ये सारा काम कर रही थी। तो जनाब उन्होंने कहा कि आप मुझे डी नोटिफाई ना करें, परवेज राही जो है वो आज इस्तीफा देकर चले जाएंगे, यानी कि आज परवेज राही इस्तीफा दे सकते हैं। जो नून लीग के सराय हैं वो ये खबर इस वक्त दे रहे हैं। ये इस वक्त मामला पंजाब की सूरत हाल में चल रहा है और अगर आज उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। तो शहबाज शरीफ ने गवर्नर हाउस में एक बहुत अहम इजलास तलब किया हुआ है जो कि इस वक्त चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जो परवेज राही है उनको डी नोटिफाई करने के हवाले से कानूनी नुकात के ऊपर जनाब मुशावरत इस वक्त जारी है। तो अब आ जाए कि रात के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सुर्ख लकीर खींच डाली है और DCISI के कान भी लाल कर दिए। देखिए, ये जनरल बादशाह के दौर से चल रहा है कि वो न्यूट्रल हैं और 22 नवंबर 2020 को, मैं आपको तारीख भी बता रहा हूं, आपको सन भी बता रहा हूं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त के DCISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ARY न्यूज पर एक बीपर दिया था कि जनाब हमारे साथ नून लीग डील करने की कोशिश कर रही है और मोहम्मद जुबैर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए डील मांगने आए थे और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम तो न्यूट्रल हो चुके हैं। तो उस वक्त बेसिकली वो एक पैगाम इमरान खान को पहुंचाया गया था कि हमारे राब्ते शुरू हो चुके हैं, आपका पत्ता साफ हो चुका है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, उस वक्त से ये नवंबर 2020 से ये फैसला जो है वो हो चुका था कि इमरान खान को हटा दिया जाए। लेकिन फिर कोरोना आ गया था तो उस वक्त के अंदर ये जो फैसले हैं वो ताखीर का शिकार हुए। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, इमरान खान की हुकूमत का एक साजिश के तहत तख्ता जो है वो उल्टा गया था। तो नई फौजी क़यादत जो है वो भी उसी फार्मूले के ऊपर चल रही है कि पहले पंजाब के अंदर आपने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल और वहां पर जैसे निजाम को हाईजैक किया गया। आपने 9 अप्रैल की रात भी आप भूल जाएं जो कल रात और परसों रात से हो रहा है। तो उस सबके बाद जनाब जो नई फौजी क़यादत है वो अब क्या कर रही है। जनाब नजम सेठी साहब ने दावा किया है कि जो फौजी क़यादत के कहने पर बैठने को तैयार नहीं होगा तो और भी तलवारें हैं। ये कहा गया कि जनाब और भी तलवारें हैं। कौन सी तलवारें हैं? तलत हुसैन साहब कहते हैं कि ऑडियोस भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगी और मेगा स्कैंडल्स भी आएंगे। आज रात एक बहुत बड़ा धमाका जो है फटेगा। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि नजम सेठी कहते हैं कि फौजी क़यादत के पास ही इमरान खान की ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, उनके पास मेगा स्कैंडल्स हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जो कह रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं। तो ये तलत हुसैन साहब दावा कर रहे हैं। तो जनाब नई फौजी क़यादत ने यह भी ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने
जनरल बाजवा को बाज रहने का हुक्म दिया है और अपने सूसर और समधी को भी कहा है कि आप पीछे हट जाए जनरल बाजवा के, तो आप अब सियासत के अंदर और पाकिस्तान की फौज में मुदाखलत ना करें, अब आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी हैसियत खत्म हो चुकी है। तो जनाब मन अब जो खबर है, असल खबर है, साबिर शाकिर साहब ने इसको ब्रेक किया है। वो कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सख्त हिदायत जारी कर दी हैं, कोई भी सियासत में मुदाखलत नहीं करेगा और DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। और आर्मी चीफ ने चौधरी परवेज इलाही के बयान का नोटिस लिया है और कहा है कि हम तो चाहते ही नहीं है कि, और ये वैसे ही परसेप्शन बनाया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट असम्बलियां तली करने जो है वो नहीं चाहती, लेकिन हम अब सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। कार्रवाई भी डाल दी है, मामला भी जो है वो हो गए हैं और फार्मूला क्या है कि हम तो न्यूट्रल हैं। वही जनरल बाजवा का फार्मूला वो अब तक चलता हुआ नजर आ रहा है। और इमरान खान साहब को भी जनाब डर्टी हैरी इस वक्त पूरा प्लान बना रहा है कि उनको किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कह रही है कि हम तो न्यूट्रल हैं। तो ये तरीका वारदात होती है और इसकी जिंदा मिसाल भी, ताज़ा मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं कि हर तरफ फौज ही फौज आ चुकी है और अचानक से ये मार्शल लॉ के अलार्म बजना शुरू हो चुकी है और गेम सियासतदानों के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन इकराम, अब जो मामला है और आपने ये देखना है कि राणा सनाउल्लाह साहब ने ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि गवर्नर पंजाब के इक़दामात के खिलाफ कुछ भी करने की अगर कोशिश की गई तो 2 से 6 माह तक गवर्नर राज लग जाएगा। और यही बात चौधरी परवेज इलाही ने कही कि इमरजेंसी लगेगी और 1 माह के लिए, 1 साल के लिए इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो जाएंगे और यही बात राणा सनाउल्लाह कर रहे हैं। और वज़ीर आला को आज किसी भी वक्त डी नोटिफाई किया जा सकता है, आज डी नोटिफाई कर देंगे, गवर्नर राज लगेगा और फिर ये मामला जो है वो अदालत के अंदर चला जाएगा। अब उस सब के बाद आपने ये सूरत हाल देखनी है कि पंजाब में रात के रेंजर्स को तलब कर लिया गया है, FC को तलब कर लिया गया है और फिर KPK के हालात आपके सामने है कि इस वक्त वहां पर जो दहशतगर्दों ने हल्ला बोल दिया है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, पाकिस्तान की अफवाज के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। तो जनाब मन KPK के हालात आपके सामने है और फिर जो पार्लियामेंट में वहां पर भी दहशतगर्दों का थ्रेट अलर्ट उनको मौसूल हुआ और उसकी सिक्योरिटी भी रेंजर्स को दी जा सकती है, लेकिन FC को तलब कर लिया गया है खुसूसी तौर पर और रेंजर्स को भी वहां पर किसी भी वक्त जो है वो तलब किया जा सकता है। तो इस वक्त हालात बहुत खराब हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के हालात खराब हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल है, भारत के बॉर्डर के ऊपर भी कोई मिस एडवेंचर हो सकता है, तो अंदरूनी हालात भी पाकिस्तान के खराब हैं। तो फिर आपने ये भी देखना है कि ये हालात अचानक से खराब होना और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। तो अहमद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा और अहम कॉलम लिख दिया है। उन्होंने जनाब ये कहा है कि कौन कौन इसका नुकसान उठाएगा, इस खेल में कुछ भी नहीं, सिर्फ किरदार बदल चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में असेंबली तोड़ने और फिर से बहाल कराने के खेल का आगाज पाकिस्तान बनने के 16 माह बाद ही शुरू हो गया था। बानी पाकिस्तान के क़यादत मोहम्मद अली जनाब की वफात को सिर्फ 4 माह गुजरे थे कि वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे पर पंजाब के गवर्नर रॉबर्ट फ्रांसिस मूडी ने सूबाई असेंबली तोड़कर सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया था और वज़ीर आला पंजाब इफ्तिखार मबदूद को घर भेज दिया। गवर्नर ने असेंबली तोड़ने की बड़ी वजह करप्शन को करार दिया था और फिर करप्शन को जवाब बनाकर पाकिस्तान में असेंबलियां तोड़ने का वो खेल शुरू हुआ जो आज भी जारी है। और ये खेल वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के दरमियान और जो वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त के इफ्तिखार मबदूद उनके दरमियान शुरू हुआ था और फिर इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए अदलिया की खिदमत हासिल की गई। और फिर उन्होंने ये मजीद कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनाब ये लड़ाई जो है वो 1953 में लाहौर में मार्शल लगाकर फौज को पूरे मुल्क में मार्शल लगाने का रास्ता दिखाया गया। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल खराब है, असेंबलियां तोड़ने की बातें हो रही हैं, उनको नहीं तोड़ने दी जा रही, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, इनको किसी वक्त नाफिज किया जा सकता है। तो यही सूरत हाल जो है वो 1953 में पाकिस्तान में पैदा कर दी गई थी और फिर फौज ने पूरे मुल्क में मार्शल लगा दिया था। और आज वही सूरत हाल है KPK में भी, पंजाब के अंदर भी, पार्लियामेंट इस्लामाबाद में भी जो रेंजर्स है, FC है, उन्होंने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है और पहला मार्शल लगाकर फौज को पूरे मुल्क में मार्शल लगाने का रास्ता दिखाया गया और पहला मार्शल सियासतदानों ने लगवाया और फिर फौज ने ये काम बार बार किया। यह अहमद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया अपने कॉलम में और ये बिल्कुल अटल हकीकत है और यही सूरत हाल बन चुकी है। अब तक खरीदते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस टाइम का अपने लाजमी ख्याल रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।